A very warm good morning to honorable guests, respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, Headmistress Ma'am, and all dear teachers. I feel immense pleasure to extend my warm welcome to everyone presented here for today's workshop. We all are gathered here to get enriched from a renowned personality. His name is acknowledged all over India with great pride and reverence. May I now have the privilege to introduce our resource person for today's workshop, Mr. Vipin Sharma. He is famous on Google as Vipin Sharma Physics. He is a member of Institution of Telecommunication Engineers. He is a director of School of Science, Patiala. He has been conferred upon National Award and prestigious Indira Gandhi Award. He has been honored more than 16 times by central government, cabinet ranks, ministers, and has many more achievements under his belt. Today, we are highly grateful, sir, that you have come here to share your wisdom and expertise with us. Now, I request Principal Ma'am to welcome our today's guest with a bouquet of flowers. Please, Arshdeep Ma'am, do join them. Feel all comfortable. My passion is Thank you. God bless you. God bless you. A big round of applause for Honorable Principal Ma'am and Headmistress. She is basically from the same place where I took birth. God bless you. Thank you. Thank you. The land of Major As it is a tradition that any event commences with an invocation to the Almighty Lord. So, keeping the tradition alive, may I now again call resource person Vipin Sharma, Mr. Vivek, to kindly lighten the lamp and also invite our worthy Principal Ma'am, Headmistress Ma'am to escort them. Please, sir, do come once again.
thank you, dignitaries, for creating a divine atmosphere and providing a fabulous opening to the workshop session. Now, I would like to request Vipin sir to kindly take over and begin the session. Please, sir. Honorable Honorable Principal Ma'am, Sandhya Ma'am, Headmistress Arshpreet Ma'am from Patiala, Arshdeep Ma'am, okay, and all teachers who are getting a big, a regard from a teacher. I'm also a teacher, right? So, before I start our workshop, I will be not preaching any lecture here. Okay? मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो लेक्चर नहीं है. वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग. इन रियलिटी आई एम टेलिंग यू, मेरे को तो आज तक कोई समझाए मैं सुनता ही नहीं. वो टीचर ही क्या जो किसी की बात मान ले. हम करते तो वही है जो हमने करना है. एग्रीड और नॉट? दैट इज वाई वी आर कॉल्ड विश्व गुरु. सुन लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, when we go for a workshop, whenever there is a circular कि tomorrow is a workshop, then when you are signing that, क्या है यार, पकाएगा कोई आएगा. और ये पहले ही बड़ा दुखी है ज़िंदगी में. एक सैटरडे था, उस दिन भी आज हो गया ऐसा. It happens, am I right? But it will not happen here today. It is not my workshop, it is our workshop. What is the purpose of this workshop? Effective teaching and motivation. Very right. What is effective teaching? That's the question. मेरे को तो आज तक किसी का पढ़ाया समझ ही नहीं आया. Interesting. My teacher, except Professor Surendra, who is author of Pradeep Fundamental Physics, my Guruji, you must be knowing. So, I did not understand when my teacher used to teach. When I go home, I said, यार कुछ समझ तो आया नहीं. Then, fortunately, my mother was also a teacher and principal. We have a school, and I enter in a school. I take a chalk, start teaching myself. Inspired by Shri Guru Govind Singh Ji Maharaj, Ape Guru, Ape Chela. I started teaching myself, imitating my teacher. मैं अपने अंदर अपने टीचर की नकल उतारने लग गया. जैसे जागरण में माता नहीं आती, तो मेरे अंदर वो टीचर आ गया. The sir with the beautiful tattoos and good biceps. I need your help. आ जाओ आगे. Big round of applause for my friend. Come here first. हुन तक कर लांगे. Your good name? राजेश. Rajesh is going to help me. Will you? हाँ जी. Sure? श्योर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर. Love you. So इन्हू ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. ठीक है? May I go upstairs? बेटे इन्हू ਇੱਥੇ ले आओ सेंटर च. Because I am scared of this phone if it fell down na. Thank you very much. So, I first of all, before I start motivations, I don't know it is motivation. Before we start discussions, so I am telling you, I used to imitate my teacher. The way he comes in the class, he used to do like this. I also started doing like this. Okay, he used to frequently utter words. You see, it's very simple. I say, you see, it's very simple. Follow. I started learning a subject which people hate called physics.
फिजिक्स से बहुत लोगों को चिढ़ लगती है, शायद आपको पता हो. एनी साइंस स्टूडेंट सिटिंग हियर? जस्ट रेज हैंड. ओके, तो फिजिक्स एंड मैथ्स 2 सब्जेक्ट ऐसे, बाद में बात करते हैं हम उस पर. मेरे को नहीं समझ आता था जी. एंड व्हेन आई बिकम अ टीचर, तो बच्चों को मैं जब पढ़ाता था तो मैं पढ़ाता नहीं था. हम सबके अंदर एक स्टूडेंट होता है, हाँ या ना? हम उसको टीच करते हैं, हाँ या ना? अगर वो सेटिस्फाइड है, उस स्टूडेंट की पर्सनैलिटी बाहर वाले स्टूडेंट के साथ मैच कर गई, वी आर द बेस्ट टीचर. अदरवाइज तेनू टीचर ने बनाया, भूत नहीं दिया. एम आई राइट? सो डियर टीचर्स, मेरे साथ बोलोगे, अ गुड टीचर. मरी जी आवाज नाल ना बोलो, पंजाबी आपां. अ गुड टीचर इज ऑलवेज a good student. Now the question is, how better good student we are discovering in ourselves. Good student, a good teacher relation is, good teacher is proportional to good student in us. Agreed? That's it. अब एज ए स्टूडेंट आपका मस्ती करने को भी दिल करता है, एज ए स्टूडेंट आपका नहीं पढ़ने को भी मन करता है, मतलब पढ़ाने को मन करता है. बट वो फिर आपके कोऑर्डिनेटर साहब, आप थोड़ा भैन जी सिलेबस ही बड़ा पीछे रह गया है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दैट. लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस. एक मेरी प्रेयर है, करेंगे? आई इनवाइट ऑल केजी, नर्सरी, यूकेजी टीचर्स हियर. प्लीज, आई कॉल देम मदर टीचर्स. मैम आज ऊपर आइए, इट इज योर सेशन, मेरा तो है ही नहीं. सभी लोग ना अपने मन में एक एक क्वेश्चन सोचो, गूगल का ना हो. अगर गूगल का होगा तो मैं गूगल से आंसर करूंगा जो आपने मुझसे पूछना है. देन आई विल ट्राई टू आंसर दैट. इफ आई डोंट नो आई विल नोट इट डाउन. मैंने वो रख लिए पेपर पेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी मदर टीचर्स के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज. जब हम लोग किसी भी सिटी में एंटर करते हैं, ओके, वहां लिखा होता है स्टूडेंट एबीसी टॉप्स इन सीबीएसई 10th क्लास. वहां पर स्कूल के डिग्नेटरीज उसको ऐसे कुछ मिठाई खिला रहे होते हैं. बेटा आप आगे आना. जैसे इस बच्चे ने टॉप किया तो ऐसे इसको मिठाई खिलाते हुए एक फोटो लगी होगी, पीछे लिखा होगा स्कूल गेट्स द बेस्ट रिजल्ट, है ना? 99.8% मार्क्स इन सीबीएसई, 97.8% मार्क्स इन 10+2, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, व्हाटएवर इट इज. साथ में क्लास टीचर भी होता है, ऑनरेबल प्रिंसिपल भी होते हैं, चेयरपर्सन भी होते हैं, होने भी चाहिए. लेकिन द रियल स्टार्स जिसने उस बच्चे को 97, 98% दिलवाए हैं ना, वो ये लोग हैं. ये नहीं है तो स्कूल का बेस ही नहीं है. सभी लोगों के ये ठीक है, फिट है. स्टैंडिंग ओवेशन फॉर नर्सरी, एलकेजी मदर टीचर्स. मतलब ये ही स्कूल है, इनसे स्कूल शुरू होता है. ये माँ भी है. ओ प्लीज कम 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 कम. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ डॉटर ऑफ पटियाला. आइए ना आप आइए प्लीज. प्लीज हैव अ सीट प्लीज. थैंक यू वेरी मच. देखिए एक चीज बताया मैं आपको, एक पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड. कोई भी टीचर जो बहुत गलतियां निकालता है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, साबन बिन साबन पानी निर्मल करे सुभाए. कोई भी ऐसा टीचर जिसको कमियां ही दिखती हैं, वो वर्कशॉप में आखिर में बोलेगा जरूर. ठीक है ना? डियर टीचर्स, आप लोग टीचर तो है ही नहीं. कोई आपको दीदी बोलेगा, कोई आपको मम्मी बोलेगा, कोई आपको बुआ जी बोलेगा,
कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई आपको कुछ बोलेगा। जब मैं पढ़ता था नर्सरी में तो मेरी माँ बोलती थी बड़ा हो जा तेरी शादी कर दूंगी। किससे करेंगे? मैं डेजी मैम से मैं शादी करवाऊंगा। आई वॉज ए किड एट दैट टाइम। तो डेजी मैम से शादी, अब डेजी मैम इस दुनिया में नहीं है, शी मस्ट बी 90+। तो हम लोग जब नर्सरी वाले होते हैं, हर घर घर की कहानी इनको पता है। इनको पता है कि किस घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये ज्योतिषियों से ज्यादा जानते हैं। Am I right? Now, being a mother teacher, what kind of challenges you face? इधर आओ बेटा, 1 2 3। अब तीनों आगे आओ ना, तुम भी, बाकी नहीं। मेरे साथ बोलो, a teacher is more mature than his or her age. Agreed? अब ये +2 में जाएंगी, बोलेंगे बेटा सीधे होके बैठो। वो मुंडा कहेगा मैडम तो छोटी लगती हैं, तुम मैंने बेटा कह रही हैं। Am I right? It happens. Come here. Introduce yourself. ये साथ में रखना है। And you can see how you look also in the camera. Yes. Good morning. दूसरे हाथ में पकड़ लो। इसको। Good morning to all. Myself Kamaljeet. I am ETT teacher here. अच्छा एक चीज है, press 1 for English, press 2 for Hindi, press 3 for Punjabi, press 4 for Rawalpindi। सानू रावलपिंडी भी बहुत चंगी बोलनी आंदी है, ਅਸੀਂ बोल छड़ दें, ठीक। press 5 for Dogri, press 6 for Bihari, because I have done so much travellings, तो I like all accent of Barnala district, Bathinda district, Patiala district, तो भाजी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट भी ਅਸੀਂ बोलन डे हैं, ठीक। सो वी कैन राइट। तो लैंग्वेज इज नॉट ए बार, ਆਪਾਂ ਉਹ लैंग्वेज चूज करनी जिस च ਆਪਾਂ कंफर्टेबल हैं, जिस च साड़ी माँ कहती ने रोटियां खा ला नहीं तेरे, बट ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ जो whatever the language you wish you can, right? Language is not an issue, please. But I know only 3 languages, sir. Which one? Punjabi, English and Hindi. जिस च कंफर्टेबल है बोलो। Press 7 for all language. Yes. ਮਾਈਸੈਲਫ ਕਮਲਜੀਤ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ETT ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਰ ਨੈਕਸਟ। That's it. ਯੈਸ ਸਰ। What challenges you face? ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਫਟਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। That's it. ਯੈਸ ਸਰ। मैंने आई हैव डन अराउंड 200 वर्कशॉप्स, except one person, Mr. One of the friend, Mr. Stephen, he is the only male nursery teacher. आज तक मैंने कोई मेल नर्सरी टीचर ही नहीं मिला। Big round of applause for all females, you know, they are the best nursery teachers. It's a God gift to you, which we people can never be. The challenges she is facing, whenever a child is coming after break, रीबूट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेटेड, सारा डाटा डिलीट। दिस इज द राइट वे वी कैन, हाउ वी कैन हैंडल इट। आई विल रिक्वेस्ट आर अर्श मैम, प्लीज वेलकम मैम, बोथ द माइक्स यू हैव। Good morning all. Sir, to handle the kids, it's not too difficult according to me. First of all, we have to go to their level. जी. We have to listen to them what they want. There are so many kids who says कि आज हमें काम नहीं करना, it's okay, if you don't want to study then it's okay, we want to play, according to them we have to go. We can't fix the timetable accordingly, according to our norms, rules and regulations of the school. Timetable is for the kids, not kids should be for the timetable. This is the first time line मैं सुन रहा हूँ, timetable is for the, not kids for the।
So every time, every moment, we have to see the kids, we have to see their expressions. Everything means whatever we want to do, we have to do for them. They are with us only for 3 hours every day. So for 3 hours, we are not ourselves, we are for the kids only. Wow, great. मेरे को तो ऐसे ही बुला लिया, आप खुद ही इतने अच्छे मोटिवेटर हो। लवली। मैं ये मेरे को फर्स्ट टाइम मिल रही है लाइंस। टाइम टेबल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे टाइम टेबल के लिए नहीं है, बट टाइम टेबल बच्चों के लिए है। और 3 घंटे हम कुछ भी नहीं है, हम उनके हैं। पिक्चर नहीं था हम आपके हैं कौन, हम बच्चे थे, बस माँ बाप सब कुछ है, हाइब्रिड है। God bless you. That's it, sir. That's it. Yes. अगर ये 2 फंडर्स हमने अपना लिए, then it's okay. Yes, ma'am, that is very much true. Voluntarily, any teacher would like to come and say something. Would you like to come, ma'am? Yes, ma'am. कई बार पता की होता है, what happens ना, when we people come wearing coat in 40 degree temperature and all, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Because you know, I'll tell you one thing. I'm also a teacher. Have I connected with you all? You are feeling comfortable? Why don't you clap for me then? ये नाल रखना। ये पकड़ लो। Good morning, everyone, once again. And I feel very privileged to be a teacher of kindergarten. As Sir said, it is the integral part of a school. And it is very challenging for our teachers to deal with them every day, because we face many challenges, like they are not ready to sit at one place. They start roaming in the classes. Some of the kids, they are smart, some of they are a bit slow learner. So we have to deal with them according to their needs. We have to pay attention to each and every child, and we have also to engage like every kid in our activities, or like full participation. We have to analyze them according to their needs. So that's it. First of all, आपके स्कूल में इतने टैलेंटेड टीचर हैं, जिसने भी टीचरों की रिक्रूटमेंट की है उसके लिए बहुत बड़ी राउंड ऑफ अप्लॉज। मुझे लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू टीचर्स बाय चॉइस, नॉट टीचर बाय फोर्स। एम आई राइट? मेरा एज ए किड मेरा क्या मानना है? शुड आई? बच्चा स्कूल पढ़ने जाते ही नहीं। कई टीचर कहते साडा किहड़ा दिल करता पढ़ाने नूं, कि बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आता। छोटे बच्चे को क्या पता है, और जो 11th 12th का बच्चा है वो तो वैसे ही नहीं आता, पर्टिकुलरली साइंस में। वो लगा मैडम जी उसी तो जी ट्यूशन जाना है तो साड़ी रोल कॉल लगा दो, राइट? और स्कूल टीचर उससे बेटर पढ़ाता है, डिस्पाइट दैट घर दा जोगी जोगना बाहर दा जोगी सिद्ध। एनीवे, विल कम लेटर टू दैट पॉइंट आल्सो। नाउ द क्वेश्चन इज, ए यंग चाइल्ड 4 year 5 year old, उसने कौन सा क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। लॉकडाउन में ना एक क्लिप वायरल हुआ था, तो एजुकेशन बेस्ड, मैं उसको बड़ा इम्प्रेस हुआ था कि बच्चे आ रहे हैं, नॉर्वे का स्कूल था, तो मैम वहाँ डांस कर रही है एंड शी इज हगिंग एवरीबॉडी एंड हैविंग ए किस। बेटा कम इनसाइड, कम इनसाइड, कम इनसाइड। आई वॉज फीलिंग वेरी जेलस। मैंने कहा यार मैं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा। थोड़ी देर बाद सीन 2, बाहर निकल, था मास्टर जी मर गया, तो ऐसी दी तैसी तू पढ़ के नहीं आता, होमवर्क नहीं करता, दे डंडा। मीन्स दे हैव कंपेयर्ड आवर सिस्टम विद द नॉर्वे सिस्टम। सी द यंग किड्स 4 year 5 year old, उनके लिए तो आप ही टीचर हो, आप ही मदर हो, आप ही सब कुछ हो। दे स्पेंड मोर, यू स्पेंड मोर टाइम विद देम देन देयर रियल बायोलॉजिकल मदर्स। एम आई राइट? मानते हो इस बात को? तो डियर टीचर्स, 1 hour according to me there should not be any teaching. Don't fear from headmistress ma'am, don't fear from Sandhya ma'am, मैं आपको फ्री हैंड दिलवा रहा हूँ। 1 घंटा तो मस्ती करो उनके साथ, कार्टून्स वैसे आप कर भी रहे होंगे शायद,
कार्टून्स देखो, आज पोगो में चलते हैं, ये चलते हैं। छोटे बच्चों की लैंग्वेज भी ऐसी ही हो गई है। जो आज की जनरेशन है ना, जो 10+1 में है, उनको पता किसने पाला है? कार्टून ने। माँ क्या करती है, टीवी पे बैठाया, छोटे होते बॉटल दे दी, वो टीवी देख रहा है, वो कहती शुक्र है बैठते तो बैठा है। जनरली, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी। और जब वो बड़ा होता है ना कि बेटा तुम जाके नहा लो, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे इस पानी से बहुत डर लगता है, शिनजैंग। एम आई राइट? उनकी लैंग्वेज बदल गई है, उनकी लैंग्वेज बदल गई है। वो हर करेक्टर को अडॉप्ट कर चुके हैं, अब्जॉर्व कर चुके हैं, एंड वो उस करेक्टर को ही जी रहे हैं। हमारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो उस करेक्टर में नहीं है, या आप लोग हो या वो कार्टून वाले करेक्टर हैं। एम आई राइट? हाउ इज दिस ऑब्जर्वेशन? He wants to clap all alone. Why not you all? ये ऑब्जर्वेशन ठीक है ना? तो इट मीन्स दैट वी हैव टू कनेक्ट विद दोज। या अच्छा, फॉर्चुनेटली हम में से पेरेंट्स भी हैं, बेसिकली ये पेरेंटिंग भी होनी शुरू हो गई है। तो हमारे भी तो बच्चे हैं ना छोटे, मान लो, तो उनके साथ भी हम कनेक्ट। ऐसी बहुत से लोगों को सच्ची बात बोल दिया है कि स्कूलों आई हैं, इन्होंने तंग करना, रोटी तक खाना नहीं है। रोटी खिलाना छोटे बच्चों को सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जो बायोलॉजिकल मदर हैं वो खाना खिला के दिखा दें, और स्कूल वाले टीचर्स को बोलते हैं मैडम ਇਹਦਾ ਟਿਫਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਰੋਹਨ ਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਰੋਹਨ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕਾਲ ਆਂਦਾ है, प्रिंसिपल मैम रोहन का टिफिन हमेशा वो सोहन खा जाता है, रोहन भूखा रहता है। होता है ना ऐसा? तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लेट अस मेक देम टू सिट टुगेदर। सभी के, आप लोग तो खाने ही मत लाओ घर से, सभी से एक एक उठाया, 30 बच्चे बैठे हैं तो हमारा पेट भी फुल, और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सब्जियां मिलेंगी खाने को। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वी नीड कनेक्शन विद दैम। एम आई राइट? एंड मैम, जैसे आप पहन के आते हो ना कपड़े, वही बच्चे घर जाके उसी रूप में वो अपने आप को बिहेव करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई वेंट टू चाइना बॉर्डर इन हिमाचल एरिया। तो मैंने, इट वॉज, माई वर्कशॉप वॉज नॉट विद द टीचर्स। ये सबसे टफ वर्कशॉप है जो आपके साथ होती है। मेरी जनरली वर्कशॉप विद द स्टूडेंट्स, 11, 12, 10th, 9th, 8th, right? 267 workshops I have done, and 200 plus with the students only. If you go to the Vipin Sharma physics channel, basically मैं physics teacher हैं, तो उसमें आपको playlist में जाके मिल जाएगा सारा, तो आपको पता लगेगा बच्चों से कनेक्शन क्या है। तो एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला। अच्छा, वो मैम वॉज रिलैक्टेंट कि मैं नर्सरी विंग में आपको ले जाना नहीं चाहती। मैं कहा मैम क्यों? कहते सर आपका सेशन है 7th, 8th, 9th आपने दे दिया, 11th, 12th कर दिया, 9th, 10th कर दिया, छोटे बच्चों से आप क्या इंटरेक्ट करोगे? मैं कहा नहीं, मेरे को मिलना है। आई लव किड्स। आई यूज टू हैव सम एक्लेयर टॉफीज विद मी, तो वो मेरी कार में रहती है, मैं ले जाता हूँ, फिर सब बच्चों को बांटता हूँ। ठीक है, ऐसी खुशी से, किसी पंडित जी ने नहीं बोला। ओके, तो व्हाट हैपेंड, जब मैं गया तो एक बच्चा जहाज बना के उड़ा रहा है, एक बच्चा वो बना रहा है, काटे माटे मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक बच्चा टीचर के टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, बाकी मस्ती कर रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला शी इज़ द बेस्ट टीचर। कहते यस सर, सर पिछले 15 साल से ये मदर टीचर है यहाँ पर। कहती आपने कैसे जज किया? मैं कहता देखो सारे बच्चे कितने कंफर्टेबल हैं, मस्ती कर रहे हैं, और एक बच्चा पढ़ रहा है। अगर वो सारे बच्चे भी चुपचाप बैठे होते तो शी इज़ अ ड्रैकुला। एग्रीड? अब छोटे बच्चे को एक ही पड़ेगा जो टेबल पे आएगा। तो ऐसी बात करते करते छोटे बच्चों में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हाउ यू टॉक, हाउ यू स्पीक, हाउ यू वॉक। दे लिसन वेरी केयरफुली एंड दे कॉपी यू एंड दे टेल एवरीथिंग एट होम कि मम्मा आज ना मैम रो रहे थे। उनकी शादी अभी अभी हुई है, इन लॉज अच्छे नहीं होंगे, उनके अपने परसेप्शंस हैं। फिर उसके बाद आपको नहीं मालूम, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आएगा कि भैन जी आज पिंकी कह रही सी कि मैडम रो रही सी, हाँ चिंटू भी कह रहा सी, और तुहाडी खबर वायरल होंदी है। यू नो दिस, यू नो दिस। तो हाउ यू स्पीक इन क्लास, हाउ यू टॉक इन क्लास,
how you wear in class, that is totally not CCTV recorded. That is recorded by the every child, and they are very honestly going to share with their parents. Agreed? Which is very, I should say, you have to be extremely careful while talking. Even if you are opening a mobile once to check, मम्मा मैम मोबाइल ही खोल के बैठे रहते हैं. ये थोड़े जो बड़े हो जाते हैं वो करते हैं. उसको खुद नहीं आ रहा होता तो वो सारे का सारा ब्लेम टीचर्स के ऊपर डालते हैं. एनीवे, जब मैं उस क्लास में गया तो एक बच्चे के दांत नहीं थे, तो मैंने बोला बेटा वेयर आर योर टीथ. अब वो बच्चा नहीं जानता इंग्लिश, तो मैडम बोलते हाँ हाँ वेयर आर योर टीथ, दांत कहाँ है, दांत कहाँ है. सर चूहा ले गया. कौन ले गया? चूहा. मैं कहा अच्छा, चूहा तो गणेश जी का है, मेरा नाम भी गणेश है. मैं तो उस गणेश की बात करता हूँ जिसके पिताजी शिवजी महाराज हैं. कहता फिर मेरे पिता भी शिवजी महाराज है. मैं कहा बिल्कुल. मैं कहा वो तो सबके फादर हैं. चलो. कहता फिर मम्मी मेरी पार्वती जी. मैं कहा बिल्कुल है ना. मैं कहा हमारी तो वो आरती भी है, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा. कहता अच्छा हाँ 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 हाँ. अब मैं पटियाला पहुंचने वाला था. आई जस्ट क्रॉस जीरकपुर. तो आफ्टरनून में कुछ 2:30 के आसपास मुझे प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आ गया कि सर मैं मैडम बोल रही हूँ प्रिंसिपल. मैंने कहा हाँ जी, आपसे कोई पेरेंट्स बात करना चाहता है. मैंने फ़ोन अटेंड किया. मैं कहा हाँ जी. अब वो अपने गांव की एक्सेंट में बोलता है, ओ तू क्या सिखा गया मेरे बच्चे को. मैं कहा क्या? और मैं शिव जी हूँ. मैं कहा क्या हो गया सर? और तू बता के गया है मेरे को. गांव के लोग ऐसे बोलते हैं, तू बता के गया मेरे को, मेरे बच्चे को भी तेरे पापा शिव जी है, मम्मी पार्वती है. मेरा नाम है सोन सिंह नेगी. मैं कहा नेगी साहब हम सब उसी के रूप हैं. और वो तो ठीक है, 2 बोतल पी के सोया था रात को मैं. ये सुबह आया 4-4:30 बजे अलार्म लगा के. फिर कहता एक जग था पूरे का पूरा ठंडे पानी का, -5 डिग्री में मेरे सिर पे डाल दिया. कहता जल चढ़ा रहा हूं. So, dear teachers, बच्चे हर चीज को नोट करते हैं. अब आप बताओ, स्कूल जितना चाहे सीसीटीवी लगा ले, लेकिन वो जो कुदरत ने सीसीटीवी आपकी क्लास में बिठाए हुए हैं वो बहुत बहुत ऑब्जर्वेटरी होते हैं. एग्रीड और नॉट? तो उस चीज के लिए कई बार आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो. वो 3 आवर्स ऑनरेबल हेडमिस्ट्रेस मैम ने बताया अभी, वो 3 आवर्स आर बेसिकली देयर, नॉट योर्स. तो यू आर लाइक ए कैरेक्टर ऑफ मेरा नाम जोकर, राज कपूर. हिज मदर डाइड, ही इज वर्किंग एज ए जोकर इन ए सर्कस. तो रिंग मास्टर बोलता है कि राजू यू आर ए जोकर, गो एंड मेक द पीपल लाफ. बोलता मेरी माँ की लाश घर में पड़ी है, मैं तो घर जा रहा हूं, मैं कैसे हंसा सकता हूं. कहता फिर कल नहीं आना, कल से सर्कस में नहीं आना, तेरी जॉब खत्म. नाउ व्हाट हैपेंड, उन्होंने क्या किया, बॉटल लगाई. जो मैंने को देखा, याद आ रहा है लॉकडाउन में मैंने देखा, आंखों में से पिचकारियां निकल रही थी और वो माँ करके रो रहे थे. एक्चुअल में वो रो रहे थे. लोग सोचते थे जोकर है, ये हंसा रहा है, और लोग तालियां बजा रहे थे. द शो मस्ट गो ऑन. तो हमें दुख दर्द भी होता है, हमें प्रॉब्लम्स भी होती है, हम बायोलॉजिकली भी ओके नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्लास में वो एक स्माइल होनी चाहिए. एग्रीड? एग्रीड? कहते हैं ना, इतनी मुश्किलें टेंशनें सबको है, मेरे को भी है. जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, हो सकता है मेरे दिमाग में भी 20 चीजें चलती हों, सभी की जिंदगी में है. लेकिन जब हम क्लास में आते हैं फिर हम वो नहीं होते, है ना. इसलिए हमें राष्ट्र निर्माता कहते हैं. ये क्यों राउंड ऑफ अप्लॉज इनके लिए, सबके लिए है? बिकॉज यू पीपल आर इन्वेस्टिंग. वन ऑफ द प्रेस रिपोर्टर डॉक्टर योगेंद्र मोहन, इंडियन एक्सप्रेस, he asked me what is your investment in teaching. My instantaneous answer was health and blood. हमें अपना सेहत लगानी पड़ती है. टीचर तबीयत ठीक नहीं है तो भी खड़ा होकर पढ़ा रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है तो भी वो पढ़ा रहा है,
मुंह ठीक नहीं है तो भी वो पढ़ा रहा है, बच्चों से, पेरेंट्स से स्माइल से बात कर रहा है, पेरेंट्स की इंटेंशन कैसी है पता नहीं है, लेकिन उसको बहुत पॉजिटिव लेना है। तो मेरे हिसाब से इससे बेटर कोई प्रोफेशन नहीं है इस दुनिया में, मेरे को तो नहीं लगा जी। हालांकि मैं डिफाइंड टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट बीएड, ओके, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट it is my perception that we people are very much for the society, by the society, with the society. The real nation builders these people are, and you all, not these people, we all. So dear teachers, parents को जब आपको हैंडल करना पड़ता है और आपका फॉल्ट नहीं होता, फिर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि मैडम मैं तो गलती ना लगी, मैं तो छड़ देनी है जॉब, आता है ना कभी कभी ये, कभी कभी। लेकिन हाउ यू कंट्रोल दोज इमोशंस एंड हाउ यू कन्वर्ट योर इमोशंस इनटू इफेक्टिव टीचिंग, आई वुड लाइक टू आस्क दिस मैम। ये साथ में रखिए। होप द वर्कशॉप इज टॉलरेबल। सच्ची बोलो, पकड़ के तो नहीं बैठे कुर्सी पर। Good morning to all. I am Neha Nagpal. Just a big round of applause for your headmistress, ma'am. And ma'am, like in this workshop, you have to conclude when it is over with your final words along with the ma'am. So please note, keep noting down what we are discussing, and everybody. दिस वर्कशॉप इज़ ऑर्गेनिक वर्कशॉप, कहीं भी किसी यूट्यूब से नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है यहाँ। आपको बताऊँ, एक बंदा ना कंटेंट लिखवाता था, लेक्चर देता था मैम, उसको अर्शप्रीत मैम ने लेक्चर लिख दिया, अर्शदीप मैम ने, वो यतीम खाने में लेक्चर देने गया, अब उसका पंखे से लेक्चर उड़ गया पोडियम से, तो वो बोलने लगा कि मैम ने बोला बोल दे अब तू, कहते ये पढ़ा लेक्चर, कहते बस तो अपने दिमाग से बोल दे। बोलता भाइयों बहनों, आप सब लोगों को यतीम देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। कहता इस यतीम खाने में इतनी सुविधाएं हैं, मैं तो सोमवार को अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा रहा हूँ, और आप भी अपने बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन दिलवाएं और यतीम खाने की और फेंजी की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। तो ये होते हैं रिटन कंटेंट। होप यू अंडरस्टैंड मैम व्हाट इज यतीम खाना और फिंजी। आपको पूछ रहा हूँ, आपको नहीं, जो आपके आगे बैठे हैं, है ना, जानते हैं ना, जिनके माँ बाप नहीं होते वो यतीम खाने में जाते हैं, है ना। यस। Once again, good morning to all. सम टाइम हमें पेरेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सडनली लास्ट आई थिंक 3 days बैक किसी पेरेंट की कॉल आई कि मैम मेरा बेटा मैगी रेगुलर खाता है, कि ही ईट्स मैगी रेगुलरली, तो हाउ कैन वी हैंडल। तो जस्ट हमने स्कूल में गया, वन डे आई एक्ट लाइक कि आई हैव अ स्टमक, मेरे को पेट दुख रहा है, तो कहते मैम आपको क्या हुआ आज, व्हाट हैपेंस विद यू। तो आई सेड कि एक्चुअली ना मैंने इसको साथ में रखोगे तो व्हाट यू सेड दैट विल आल्सो रिकॉर्ड। ओके, तो आई सेड टू देम कि मैंने ना आज मैगी खाई थी तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल और आई हैव अ स्टमक एक। तो नेक्स्ट डे कहता मैम मैगी इतनी बुरी होती है। मैं कहा येस बेटा, मैगी वी डोंट ईट मैगी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्दी फूड। तो सडनली नेक्स्ट डे उसकी मम्मा की कॉल आई कि मैम मेरा बेटा कहता है कि आज के बाद मैं मैगी नहीं खाऊंगा, मेरी टीचर बीमार हो गई है स्कूल में। तो सडनली 3 और 4 डे लगातार, अब वो मेरा टिफ़िन चेक करते हैं कि मैम क्या लेके आए हैं। तो समटाइम्स ही चेक, अच्छा मैम आज फ्रूट लेके आए हैं, मम्मा मेरे को फ्रूट ही सेंड करना है आपने। मतलब जैसे हम उनके साथ बिहेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डेली वो उसकी फीडबैक हमें मिल जाती है आफ्टर 1 और 2 days। वेरी गुड। आपने अभी भी ज्वाइन किया स्कूल? नहीं सर, हाँ, 8 years में। तालियां कम हैं। जैसे इन्होंने बोला ना टीचर की बात, मेरी मदर प्रिंसिपल, मेरी टीचर ने बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डलहौजी। तो मैं घर गया, होमवर्क हर माँ करवाती है, मेरी माँ भी मुझसे करवाने लगी। तो मैंने बोला मैडम ने डलहौजी के ऊपर नोट लिखाया है बोलने को। तो वो बोलती है ये लॉर्ड डलहौजी है। मैं कहा नहीं डलहौजी हिल स्टेशन है। मैं कहा लॉर्ड डलहौजी है, नहीं डलहौजी हिल स्टेशन है। शी इज़ प्रिंसिपल, आई एम नॉट लिसनिंग माई प्रिंसिपल मदर, आई विल फॉलो द माई क्लास टीचर।
तो उस वक्त लैंडलाइन होता था, फ़ोन करके बोले उषा तू 10 मिनट लॉर्ड डलहौजी है कि डलहौजी है? मैडम नहीं सर, मैडम लॉर्ड डलहौजी है, ये डलहौजी हिल स्टेशन बोली जाता है। देन शी सेड नो लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो टीचर जो बोलता है ना बच्चा वही करता है। तो मैडम ने मतलब एक ख़ास प्रोडक्ट को खा के इनकी तबीयत, मैं तो नहीं बोलता, मैं वो माइंड ना कर दे, तो एक ख़ास प्रोडक्ट खा के मैडम का तबीयत ठीक नहीं हुआ तो बच्चा बोला मैं भी नहीं खाऊंगा। तो क्यों ना हम बच्चों को इंस्पायर करें। एक ज़माना होता था, आज भी शायद होगा, एक प्रेयर होती थी, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से डरे ताकि रोते हुए निकले दम। होता था ना, हमको मन की शक्ति देना, है ना, तेरी है जमी तेरा आसमां, ठीक है ना। उस दौर में जो वो प्रेयर्स बनी, आज की डेट में क्या प्रेयर होगी बताओ? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, कुत्ती मैनू कहंदी कुड़ी मैनू कहंदी, सॉरी कुत्ती नहीं, कुड़ी मैनू कहंदी जुत्ती लै दे सोहणिया। विल इट बी ए प्रेयर? It means that our culture is totally somehow is there. देह शिवा वर मोहे शुभ कर्मंते कर, ये बहुत कम सुनने को मिलता, बच्चों को यही नहीं पता। आप यकीन नहीं करोगे मैम, ये सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने बोला बेटा वीर बाल दिवस क्या होता है? कहता अभी अभी मोदी सर ने छुट्टी अनाउंस की है। मैं क्या मालूम है वो किसके लिए है? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। We are not taught like that. When we were kids, our grandparents, grandfather, grandmother used to tell us about Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, right? Okay, they used to tell about the Ramayana, Mahabharata and all. Nowadays, they discuss about what, you know, Rani and such kind of movies, right? So our system is totally somehow, I feel sometimes it's a conspiracy कि उसको ख़त्म किया जा रहा है, कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। छोटे बच्चे में पेशेंस नहीं है, वो कोई वीडियो देखेगा अच्छी, स्किप पे जाएगा। तो dear teachers, don't you think we can play a big role in that? We have to create compulsory moral science class. It is immaterial whether you are taking English, Hindi, Punjabi, physics, chemistry, maths, biology, social science, music. Every teacher can do this kind of job. And the grandparents, they are the most neglected in our society nowadays. दादा दादी, नाना नानी या घर के बुज़ुर्ग, वो एक साइड लाइन किए जाते हैं। बच्चा स्कूल से घर जाता है, राइट, उसके बाद वो अपने ट्यूशन पे जाता है, राइट, उसके बाद वो होमवर्क करता सो जाता है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल मदर टीचर्स, मेक अ रूल दैट वंस in 15 days all children must click one selfie with Dadaji and Dadiji and post it in the WhatsApp group. Am I right? And they should spend time with their grandparents at least 15 minutes daily. आप बच्चों को बोलो कि बेटा ये होमवर्क ना दादा दादी के पास बैठ के करना और सेल्फी भी डालना, तो कनेक्शन बनेगा. आवर सोसाइटी इज सच दैट एवरीबॉडी इज गोइंग. बड़े बच्चों की बात करूं, वो घर गए, अपने घर में गए, अपना मोबाइल खोला, उस पर लग गया. मदर से बात करो, वो भी मोबाइल पे लगी है. फादर भी हैं. हम मोबाइल को गालियां मारते हैं, नहीं, मोबाइल बुरा नहीं है, वो बाद में बात करते हैं कैसे उस पर हम जाएंगे. तो यंग किड्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. जो बहुत छोटे बच्चे हैं, आपके लिए तो सबसे टफ काम आप कर रहे हो. कोई ऐसा पॉइंट आपके दिमाग में हो जिसमें आप अपनी क्लासरूम को बहुत इफेक्टिव कर पाओ. यस, एनीबॉडी? कोई चीज़ ऐसी स्पेशल जो आप शेयर करते हो. वुड यू लाइक टू कम एंड टेल मैम? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप बोलोगे कि स्किप भी कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू कम? जो आपके मन में हो. ये किसी बीएड के सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको. दोनों पकड़.
मॉर्निंग एवरीवन। इसको छोड़ दो, चलो जाने दो, बस इसको रख लो। जैसे सर हमारे एक तो आपको आज साथ साथ में वर्कशॉप में माइक हैंडलिंग भी आ जाएगी। जैसे सर हमारी क्लास में छोटे बच्चे हैं प्री नर्सरी के। हेलो। ब्रेकफास्ट कितना है? हाँ जी। कुछ जल्दी बोलो। हेलो। हाँ जी, जैसे सर हमारी क्लास के प्री नर्सरी के बच्चे हैं, छोटे हैं, वो मॉर्निंग टाइम आते हैं तो वो रोते हैं। हमें उनको अच्छे से पहले तो हैंडल करना पड़ता है। उनको हम जैसे टॉय देते हैं, अलग अलग कलर्स देते हैं कि बेटा देखो। हेलो। हाँ जी, जैसे हमारी क्लास के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मॉर्निंग टाइम में आते हैं तो रोते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि बेटा इधर आओ, ये देखो अलग अलग शेप्स हैं, ट्रायंगल शेप्स हैं, ये देखो। इसके साथ उनको एक तो कलर की रिकॉग्नाइजेशन होती है और उनको पता चलता है कि ये कौन सी शेप है। इसके साथ बच्चे ऐसे करते हैं कि हाँ जी सर, और उनको जैसे कलर के बारे में बताएंगे कि विच कलर इस दिस, कलर्स के बारे में पता चलेगा। जैसे रेड कलर है, उनको पता चलेगा कि एप्पल है, जैसे एप्पल का कलर क्या होता है, रेड। येलो कलर है, जो हमारी क्लास में चेयर्स हैं, तो हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा आप जो चेयर पर बैठे हो, विच कलर इज दिस, येलो। बच्चों को इसके बारे में भी ऐसे पता चलता है। हाँ जी। आपने कभी गाना गाया क्लास में बच्चों के लिए? नहीं सर, नहीं गाया। जैसे राइम्स वगैरह। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ जी। वो अभी तक चल रहा है? नहीं सर, अब तो कोई और है। जब हम होते थे वो ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबीज होता babies है। होता है। आजकल तो नए आ गए हैं कुछ, है ना? हाँ सर। ये फेसेस वाले डालते रहते होंगे। और कुछ बोलना है? एनी क्वेश्चन यू लाइक टू आस्क मी? नो सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। वेल, मैम ने बोला कि हम बच्चों को डाइवर्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे छोटे होते बोलते थे ना, चोट लगी है, ओ कीड़ी मर गई, कीड़ी मर गई, कीड़ी मर गई। और बच्चा कुछ, चाहे चोट जितनी ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, लेकिन हल्की सी चोट से ब्लड आए तो वो रोना शुरू कर दे, देख के ब्लड आ गया, ब्लड आ गया। तो छोटे बच्चे रियली चैलेंज हैं। यहाँ पर 90% जो टीचर्स बैठे हैं ना, अपने आप के अंदर मात्र तत्व जाग रहा होगा कि यार सच में हमारी तो पेरेंटिंग हो गई है। लेकिन कभी किसी ने आपको थैंक यू बोला पेरेंट्स ने कि मैडम मेरा बच्चा कभी नहीं पढ़ा, आपने चला दिया? आपको बोला थैंक यू? आपको भी बोला है? सबको बोला है? ओके। सो मदर टीचर्स, आपका देन तो कोई नहीं दे सकता। मतलब मैं सच में कह रहा हूँ, आई डोंट नो कभी ऐसा हुआ होगा किसी इतिहास में कि ऐसे किसी ने मदर टीचर्स को बुलाया हो ऊपर। फर्स्ट टाइम बुलाया है? फिर तो यार मेरे लिए भी तालियां तो बनती हैं। आई एम विद यू ऑल। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी ऑफ ए टीचर। वो एक लाइन है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। नहीं यार, ये लोग तो वो हैं, इनको तो रोज़ दिल से सलाम। Big round of applause once again for all mother teachers. Any problem you would like to share with me जो आप फेस करते हो? आइए प्लीज। कुछ नहीं कहते मैम, सर दे आर वेरी फ्रेंडली विद यू ऑल। कई बार पता क्या होता है, हम इसलिए नहीं बोलते कि तू क्यों ज़्यादा हीरोइन बननी है, तेन ज़्यादा होता नहीं कि चुप रहीदा होता है। अरे लिव योर लाइफ, लिव योर लाइफ। लेट मी टेल यू, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा जो तेरे साथ बैठा है ना, अभी बैठा है 2-3 साल, उसके बाद 15-20 साल के बाद तू फेसबुक पे ढूंढेगा, अच्छा है पिंटू वही है यार, तू कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता था, अच्छा। कोई नहीं पहचानता। आप अपनी ज़िंदगी जियो, लिव योर किंग साइज लाइफ। इंस्टा रील बनानी है बनाओ, और प्राइवेट अकाउंट में बच्चों को अपने स्क्रीन पे दिखाओ कि मैम ने आज डांस करके दिखाया, मैम ने आज गाना गा के। आप अपनी पर्सनैलिटी को किल करोगे तो आप बच्चों को बेस्ट नहीं दे सकते। एग्रीड? मानते हो इस बात को? यू आर वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी वंस यू एंटर इन द क्लास। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर क्लास, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर क्लास, यू आर द बिग बॉस ऑफ योर स्कूल क्लास, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर क्लास। हाँ, जब पेशी पड़ती है ऑफिस में, फिर उस वक्त सारा कुछ खत्म हो जाता है।
कि मैडम आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, देख लो मैडम, 1 महीना और देख लेने हैं, उस वक्त फील होता है कि यार आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम द बेस्ट टीचर, वाई आई एम नॉट बीइंग अपलॉडेड और इनकरेज्ड। फिर पता क्या होता है, कोई दूसरा टीचर अगर वहां से निकला हो और जिसके साथ थोड़ी बहुत ना बनती हो, पक्का आग लगा के आई है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वी आर ऑल बेस्ट टीचर्स, ए गुड स्कूल इज ऑलवेज ऑनरिंग देयर टीचर्स। तो हाउ वी कैन क्रिएट इफेक्टिव टीचिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर। अब इफेक्टिव टीचर का पॉइंट नंबर 1, ओरिजिनल पर्सनालिटी, फ्री फ्रॉम वायरस। क्लास में एंटर करते ही दुख दर्द तकलीफ बात डस्टबिन में रखो, जाते हुए ले जाओ। बिकॉज आपको सैलरी कौन देता है? हु गिव्स यू सैलरी? मैम की तरफ देख रहे हैं, है ना? आगे आ जाओ प्लीज, आगे आ जाओ, लाइट पड़ रही है, आई नो इट्स इरिटेटिंग। सभी लोग, सैलरी आपको एडमिनिस्ट्रेशन देता है जी, है ना? गलत, आपको सैलरी पेरेंट्स देते हैं। और वो पेरेंट्स जो हैं, दे आर गिविंग अस फी बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग बेस्ट फॉर द स्टूडेंट। एंड व्हेन वी आर डूइंग बेस्ट फॉर द स्टूडेंट, उसमें स्कूल का नाम बाद में आता है, पहले आपका नाम आएगा, है ना? और आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है, स्कूल ऑटोमेटिकली जस्टिफाई होगा। एग्रीड और नॉट? मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये कितना इफेक्टिव है। I went to Jammu. A principal sir says that sir, now you are having a lecture. मैं कहा let's see. क्या पता है पंजाबी च कहंदे ने किसी ਨੂੰ विरजी माँ वादी ते किसी ਨੂੰ माँ स्वादी, right? तो God knows कि किसी को कैसा क्या लगता है। I cannot make everybody satisfied, but I'm giving organic session. मैं reality बताता हूँ क्योंकि मैं टीचर की ज़िंदगी जीता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो डियर टीचर्स, मैं बोला करता हूँ यार, कल को आप पायलट बन गए या बस के आप ड्राइवर बन गए या ट्रेन ड्राइवर बन गए, तो आप बोलोगे यार मुझे इतना अमाउंट नहीं मिल रहा, इतनी सैलरी नहीं मिल रही, तो मैं जहाज़ को क्रैश करा दूंगा। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? तो वो एयरक्राफ्ट कौन है? आपकी क्लासरूम। पैसेंजर कौन है? वो बच्चे हैं। हम कौन हैं? नेविगेटर हैं। पंजाबी च कहते हैं जय जहाया तहाँ सहेलिए, मीन्स जो हमारे पास आ गया, इररिस्पेक्टिव व्हाट वी आर गेटिंग, वो एक्स्ट्रा बात है, हमें अपना उनको बेस्ट देना है। दैट इज अवर मॉरल ड्यूटी एंड वैल्यू, दैट विल क्रिएट एन इफेक्टिव टीचिंग। तो हाउ यू विल क्रिएट इफेक्टिव टीचर इन यू, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। एनीबडी? यस, कम, यू वांट टू से समथिंग? तुसी भी भैन जी आ सकते हो। So if we are talking about the kindergarten classes, मैं किंडर केजी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਦਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰੋਗੇ? so first of all ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਇਜ਼ ਔਨ। if we have to teach at the level of, we have to come at the level of the kids first, what they feel, what they are thinking whenever they are entering the class. They are not in the same mood. Once they are happy and the other day they are not want to study. So if we start with the class, let's do the reading and let's start writing, they will not focus. So first of all, we have to level the kids what they are thinking. If they want to study, we should do that. If they don't want to study, we should start with the playing or with the activities, with the prayer. Then when they are comfortable in teaching, even during the activities we can teach them. If we are playing a bingo game, I have played a bingo game, we used to do 1 to 25. We start, let's cross the numbers, which number you have seen, quickly cross it out. We start the counting, we give the timer within 10 seconds or within 5 seconds you have to cross the number 1, 3, 13 or 5. We split the class in the teams, let's see who wins the game. So they taught, we did the teaching, they enjoyed the game. So we have to see how they are comfortable in teaching and how we are changing their moods. This is called psychology of a child. Yeah. If we don't want to study, so we have to teach them, but in a different way कि उसको भी पता ना लगे कि मैम उसको पढ़ा भी रहे हैं और वो पढ़ भी नहीं रहा.
कि वो पढ़ भी ले और उसको पता भी ना लगे कि मैम उसको पढ़ा भी रहे हैं। थैंक यू। आपको कितने साल हो गए पढ़ाते? 6 years। दिखने में तो आप अभी स्टूडेंट लगते हैं। एक्चुअली आपको चीज बताता हूँ, you learn a lot of things from this generation। या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, कीजिए जो भी सोचना पड़ा कीजिए, या तो ये एक्सट्रीम बेस्ट है या फिर एक्सट्रीम वर्स्ट है, बीच में नहीं है। I like it। हाँ, that is what I'm saying। कितनी मैं this is my third Cambridge आपको नहीं ऐसा चीज बताओ श्योर वो बंद कर देते वाला मेरा मैं एक गल कहना चाहता छोटी सी। Have you ever prepared yourself to come to the class to teach? We have prepared, but wherever our preparation is all depends on the student। प्रिपरेशन उसी तभी मैटर करेगी अगर बच्चे उस अकॉर्डिंग रेडी होंगे। तो ये नहीं कि अगर हम प्लान करें कि आज ये भी पढ़ाना है ये भी पढ़ाना है, बच्चे अगर उस मूड में नहीं है तो हमारी प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा होगा। You are more mature than your age। Very nice, but I don't know your name। नेहा। A big round of applause for Neha ma'am। थैंक यू सर। बच्चे पूछेंगे क्या क्या पॉइंट निकलते हैं। पहला तो बच्चों के लेवल में आओ, राइट। दूसरा कुछ तैयारी ही नहीं है, क्लास में जाके पता लगेगा कि करना क्या है। जो कि रिसोर्स पर्सन का फंडा है तो मेरी भैन निकलेगी। अब भाई साहब मैंने रस्ते च कहते विवेक सर घबराते नहीं रहे। अब मैंने कहते सर एक बहुत तकड़ा स्कूल है, उत्थे प्रिंसीपल वाइस प्रिंसीपल दे आर वेरी इंटैलीजेंट पीपल। मैं क्या स्टाफ नहीं? कहते स्टाफ भी है। मैं क्या फिर कहता सर मेरी बेइज्जती ना हो जाए। होता नहीं रही। ओके नो लॉजिक इज दिस दैट मैं क्या पता क्या है, ओरिजिनल चलो, नेचुरल चलो, राइट, बट बी ऑनेस्ट। अब वो कागज पे लिख के अच्छा चलो सपोज करो मैं पीपीटी लेके आता, यस चाइल्ड साइकोलॉजी यहाँ पर चलता चाइल्ड साइकोलॉजी, तुसी कहना चाहिए था यूट्यूब ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ देख सकते हैं, बट आप नहीं देख सकते ना। यू आर हाउ मेनी पीपल आर फर्स्ट टाइम गेटिंग एन इंटरेक्शंस विद देयर मदर टीचर्स इन द स्कूल? हाउ मेनी पीपल रेज हैंड फर्स्ट टाइम? ऐसे कलेक्टिव। तो आपको पता लग रहा है रमेश बाबू इनकी तकलीफें, हाउ मच दे पीपल फेस। आपको लगता होगा सीनियर टीचर्स के हमें तो ये ट्रिग्नोमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। इनका रोल कितना टफ है। दे आर टोटली दी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द स्कूल। क्योंकि नर्सरी में सेटिस्फेक्शन आई, एलकेजी में सेटिस्फेक्शन आई, तो फर्स्ट में बच्चा आएगा, नहीं तो बोलेगा जाता हूं मैं, साथ में 4 और ले जाएगा, है ना। तो आपको कनेक्शन बनाने के लिए इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप एक काम करो, नकोदर में ऐसी दुकान ढूंढो। ध्यान से सुनना है, ये पहली बार कोई रिसोर्स पर्सन बोल रहा होगा, गारंटी देता हूं, एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल। नकोदर में ऐसी दुकान ढूंढो जो बंदा कोई लाइक हो, कंप्यूटर असेंबल करता हो। उसको बोलो यार सानू कंप्यूटर बना के दे। हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर नहीं चाहिए, सिर्फ उसमें नेट चल जाए, गूगल क्रोम चल जाए, दैट्स इट, सस्ता बन जाएगा। असेंबल करवाओ। एक तो लोकल बंदे को जॉब मिल गया, अगर सभी टीचर्स बनवाएंगे तो उसको भी फायदा होगा। कंपनी वाला जो है ड्रामे करेगा, अगर खराब हुआ बोलेगा चंडीगढ़ गया जी, आएगा वर्कशॉप जलंधर गया। वो बंदे ने क्या करना है, वो आपको जानता, आप कभी भी उसको पकड़ के उससे ठीक करवा सकते हो, हाँ या ना। दूसरा, घर में एक स्टूडियो बनाओ। ये उठाएंगे यहाँ से कोई जना, एक वो कैमरा होगा लगा हुआ, ये वाला, यस एक्चुअली आई फॉरगेट सम। ऐसे कैमरा ट्राइपॉड पे लगाओ, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें लगाओ, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पर स्ट्रिंग डालो, कंडीशनिंग ऑफ ए चाइल्ड, बहुत कुछ। आपको इतने बेस्ट से बेस्ट लोग मिलेंगे, फिर भी नहीं आप मानोगे। करना तो आप वही है जो अपन ने सोचा हुआ, बट कुछ आइडिया जरूर मिलता है ना। एग्री करते हो? हाउ इज दिस आइडिया? गुड। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है। अगला पॉइंट,
I request principal ma'am and vice principal ma'am to listen this very carefully, and all teachers. आप लोग संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन आधे घंटे की पेरेंटिंग करो गूगल मीट पे। नोटिस निकाल दो कि मॉर्निंग में रखना, कहीं स्कूल टीचर शाम को 4 बजे रख देंगे, गालियां निकलते यार हमने कहीं जाना था कहीं जाने, सुबह रख लो टाइमिंग, आधे घंटे से ज्यादा ना, 30 मिनट्स। उसमें व्हाट यू डू इज आप अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करो। जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो लोअर क्लासेस के हैं चाहे वो अपर क्लासेस के हैं, आप अपने क्लास के पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करो। जब आप इंटरैक्ट करोगे, उनको आप बताओगे कि हमने इतना सिखा दिया, आज ये टॉपिक हमने करवाया, पूरे वीक में हमने ये पढ़ाया, इसी को आपने प्रैक्टिस करना है। एक तो आप कनेक्ट किसको कर गए? मदर्स को कर गए ना। दूसरा, वो मदर किसी भी दूसरे मदर से इस टॉपिक पे कम कम्युनिकेट करेगी कि स्कूल में क्या हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे की एक प्रॉब्लम होती है, वो कई बार लिख के नहीं लाता, वो दूसरे मदर से इंटरैक्ट करते हैं कि तुसी बताना एक लिख के लेके आइए, थोनू दस्या डायरी च लिखा कि नहीं लिखा। एक वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक नेक्स्ट वीक का आप शेड्यूल दे सकते हो, और सभी छोटे बच्चे एक लेवल से तो उठते नहीं हैं। अब किसी ने ABC सीख ली, किसी ने D सीख ली, कोई मेरे जैसा A पे ही बैठा है, तो उसमें प्रोग्रेस सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। अब बड़ी क्लास में तो हम 40 मिनट के लिए आए, लेक्चर दिया, 2 सम करवाए, एक्सरसाइज ही चले गए। अब इनको तो खुद ही होमवर्क भी करवाना है, खुद ही याद भी कराना है, खुद ही सिखाना है। इनकी प्रोग्रेस बच्चे की प्रोग्रेस है। तो आपका एक कम्युनिकेशन जब पेरेंट्स के साथ होगा, एक तो आपकी बॉन्डिंग बनेगी, एक आपकी स्कूल की ब्रांडिंग होगी। उससे ज्यादा आप लोग मोगे वाली पिंकी तो ज्यादा फेमस तुसी हो जाना है। एवरीबॉडी विल नो कि यार ये कैम्ब्रिज स्कूल के टीचर हैं यार, बड़ा गजब, स्पेशल आधा घंटा आपका ऐसे वेट करेंगे जैसे एक सीरियल का वेट होता है कि आज आधा घंटा है। देखो सुबह मेरे को ब्रेकफास्ट 8 बजे से पहले कर लो, या 8:30 के बाद मैडम ने आना है। मैडम व्हेन यू विल गो देयर, खाली आपका कम्युनिकेशन वो मदर नहीं देखेगी, रिश्तेदार भी देखेंगे, उसका फादर भी देखेगा, बोलेगा यार ये स्कूल के बच्चे बड़े मैडम बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा है, कितनी बड़ी बात बोल गया नेहा मैम, ठीक है ना। तो उससे आपकी इफेक्टिव टीचिंग और निकल के आएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? PTM जो है ना, लड़ाई फ्री है। नहीं तो जब PTM होती है, आप गुरुद्वारे मंदिर के मत्था टेक के आना है कि आज उधर डैडी ना आवे, वो बहुत लड़का है। अब वो जैसे PTM में आएंगे, मैडम ये तो आपने पिछले संडे भी बताया था, कोई ना जी ना कुछ नहीं, बस साइन करवाओ चलिए। जो 3 बजे वाली PTM खत्म होती है, 1:30 बजे खत्म हो जानी है। विपिन सर को याद भी करना है कि एक रिसोर्स पर्सन आया था, है ना। गुड आइडिया। इफ योर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअली मुझे यहाँ के पता लगा, आपके चेयरपर्सन का एक स्कूल है, निर्मल सागर स्कूल लसाड़ा, मिस्टर पासी इज आल्सो चेयरमैन देयर। तो मैंने वहाँ भी किया था कालिया सर, एंड वहाँ पर बड़ा अच्छा था। वो यूट्यूब पे पड़ा, आप देख सकते हो, ये भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा शाम तक। तो डियर टीचर्स, विल यू प्रॉमिस मी टू स्पेंड सम मनी, मेक योर स्टूडियो? बोलो, विल यू प्रॉमिस मी? सोच के बोलना, विल यू प्रॉमिस मी कि आप वहाँ से इंटरनेट से नोट्स बनाएंगे कि मैंने अपने आप को और बेटर कैसे करना है? एग्री? हैव यू एवर थॉट दिस आइडिया अर्लियर? ओ आ जाओ मैडम, 2 मिनट आओ। एक साथ। Yes, sir, I do. As you said, I search on the net like how I can improve, like in which I am lacking. If I am lacking in some of the skills, I always try to improve that by searching and finding the new ideas how I can improve myself in that area, particular area. Now what you are going to do is that you are going to make a studio, seek a permission from your school, send a Google Meet link, and then you are going to communicate with the parents, but in Punjabi. I'm not good in Punjabi. No. But what you do? You're from Bengal? No. I'm from Punjab only, but I have been brought up in Maharashtra, so I'm not good in Punjabi. Okay, she is Maratha. Manus. Yes, Maratha. Manus. Okay. Your good name? Fulji.
So Kuljit ma'am said that, "Nee, ma'am, you have to speak English, because if you speak English with the parents, when I'm coming from anywhere, the policeman stops me on the way. If I am wrong, well, dear officer, actually I am a teacher. I have to go to Patiala, so I'm on the way. Oh, jao ji jao. English helps you to save, you know. You okay? So when you meet the parents, you know, speak English. First, prove that yes, you can speak that English that you leave behind English, walk, talk in English. It's a funny language. After some time, jadon ਉਹਨਾਂ ਦੇ expressions, and speak English like Shashi Tharoor. You know, I got a chance to deliver a lecture to the parents, and the honorable principal said, "Sir, you have to allocate only in English. In my school, English is a compulsory. There is a fine if someone doesn't speak in English." I was okay. So when I went to meet parents, majority came in tractors and trolleys. They were sitting there. When you can see, once I enter in this ABC school, I like the exuberance and the opulence and the fabulous atmosphere here given by the honorable, dignified principal ma'am, and I am so enthralled and enthusiastic and interested with such a. एक बंदा कहता काका की बोली जाना है, तू कित्थे दा रहने वाला है? मैं कहा जी मैं पटियाले दा है। कहना तैनूं पंजाबी आंदी है? मैं कहा हाँ। कहना फिर बोल। मैं कहा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां ने बच्चों नूं कहना हुण गल समझ आई है। पहला मैं कहा मैडम ने मैनूं कहा सी नहीं पैसे नहीं मिलने मैनूं। कहना कोई ना जी फिक्र ना करो। मैं कहा मैम कैन आई स्पीक पंजाबी? कहंदे जी जो मर्जी बोलो हुण। सो इदां हैगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ बिग प्रॉब्लम। पर्टिकुलरली पेरेंट्स सेड दैट वी हैव स्पेंट सो मच मनी। मैडम बाकी तो सारी गल्लां ठीक है, अंग्रेजी नहीं बोलता है ना, आती है ना प्रॉब्लम। आप एक काम करो, बच्चे को परफेक्ट करो ऑल द लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। बच्चा जब बाहर जाए तो उन्होंने बोले कि बेटा इन विच स्कूल यू स्टडी? आई स्टडीड इन कैम्ब्रिज स्कूल। अब छोटे बच्चे को तो 15-16 सेंटेंस होते हैं, वही सिखाने होते हैं। जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं वही सिखाने होते हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल, हु इज़ देयर क्लास टीचर एंड सो ऑन। बट जो बड़े बच्चे उनके लिए बोल रहा हूँ, उनकी कंडीशनिंग हर सब्जेक्ट वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में, पंजाबी वाला पंजाबी विच उसकी कंडीशनिंग करे। वंस दैट चाइल्ड इज आउट इन जलंधर और एनीवेयर, तो उनको विच स्कूल यू स्टडी? अंकल यू वांट टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, प्रेस 1, इन हिंदी प्रेस 2, इन पंजाबी प्रेस 3। लैंग्वेज तुसी सिलेक्ट करो। इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन इन पंजाबी, आई विल रिप्लाई इन इंग्लिश, प्रेस 4 कि बेटा प्रेस 4। तो बच्चे की कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इज नॉट एन इशू। पेरेंट्स वांट दैट माई चाइल्ड शुड स्टडी एंड स्पीक इन इंग्लिश। और घरे हो किहड़ी भाषा बोलते हो आपां सब नूं पता, अपने पंजाब च खास तौर पर हरियाणा पंजाब च। सो डियर टीचर्स, लैंग्वेज इज अनदर मॉड ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड इट इज़ अ स्टेटस सिंबल ऑफ ए स्कूल। यस और नो? So that is another very big challenge for us. So there are so many tips you can see, but I assure you, you're going to solve your 95% problems if you start interacting with the parents every week. And रोल का लगाओ उस पर। अच्छा, कई बार हुन एक प्रॉब्लम है, जो मैरिड लोग हैं उनके पति देव बोलेंगे यार एक संडे का दिन होंदा है, उस दिन भी स्कूल का पंगा करे कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस, राइट? लॉजिक इज व्हाट? वी आर बेसिकली टीचर 24/7, एम आई राइट? वी इनहेल। मेरे को तो रात को उन बच्चों के शक्लें दिखती थी जो पढ़ते नहीं थे। वरुण कम पढ़ता, फेल होगा, इसका बाप बोलेगा कि ऐसे ऐसे भूतों की तरह दिखते थे, स्लाइड शो चलता था। तो लॉजिक ये है, आप इतने टीचर्स हो, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तो एब्सेंट भी होंगे। तो वो बोलेंगे वर्कशॉप है बड़ा बोरिंग सी होगी, मैं नहीं आंदी। कोई अद्धे बीमार होंगे झूठी मुट्ठी दे। बट इट इज़ नॉट सो ना, ऐसे तो नहीं है ना। तो आप अपना टाइमिंग कर लो, 30 मिनट्स है, 5 मिनट्स ईच बोलो, सो दैट यू शुड कम्युनिकेट मैक्सिमम। यू विल बिकम अ ब्रांड इन योर सेल्फ। कैम्ब्रिज स्कूल बाद में आएगा, पहले नेहा मैम। अच्छा, मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ जहाँ नेहा मैम पढ़ाती है। कौन से मैम? कैम्ब्रिज। मीन्स आप अपने लिए जियो यार।
मेरे को एक बंदा बोलता तू देशभक्त है, मैं क्या ना, मैं क्या पर मैं कूड़ा जड़ा है कूड़ेदान च सुटदा है, ठीक है, कानून विच रहना है, किसी ਨੂੰ गलत नहीं बोलता, आई रिस्पैक्ट माई एल्डर्स एंड माई देश के जेडे मेरे लीडर्स है जेडे जेन्युइन है, मैं रिस्पैक्ट करता है, तो आई एम डूइंग माई ड्यूटी, सो दैट इज कॉल्ड देशभक्ति. सिमिलरली अगर आप अपना 100% दे रहे हो, इररिस्पेक्टिव आप कहाँ काम कर रहे हो, वो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है. ये मत सोचो कि आपको मिलता क्या है, आप ये देखो कि मैंने करना क्या है, उसी से आपका स्केल बढ़ेगा. आज की डेट में जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग में जाते हैं, उनकी ये नहीं पूछते पता क्या है पैकेज क्या है. मेरे बच्चे को 30 लाख का पैकेज मिला, 1 करोड़ का पैकेज मिला. पैकेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट क्वालिटी वी आर डिलीवरिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. पैकेज विल ऑटोमेटिकली विल बी देयर. एग्रीड और नॉट? तो डियर टीचर्स, thank you very much. Any question in your mind? So what effective points we understand, would you like to brief? Anybody? Ma'am from Maharashtra. One thing, the new thing that I have learned is to interact and communicate. Bombay आवाज पहचानिए आपका. Okay. To interact and communicate with the parents First and point, let them know. interact and communicate with the parents. Second point. Second is you have to teach the kids according to their needs, like according what they are wanting and in what way they want us to teach. And the third thing that I have learned is like you have to polish yourself, you have to improve your skills in which you are lacking. You told 4 points. Yes. Anybody? 5th point. Yes. ये पकड़ लेना नाम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसे अभी नेहा मैम ने बताया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीच एट द किड्स लेवल. हमें बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा. ये नहीं है कि हम अपनी कुछ ही लेवल पे आ रहे हैं, कुछ पढ़ाते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली वी आर स्टडिंग और रीडिंग, बट दिस चाइल्ड इज दे आर प्लेइंग आफ्टर अस. देन व्हाट? हमने पढ़ाया बट बच्चे को समझ ही नहीं आया. बट थिंक इज़ दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू check the students, are they interested in a learning or not. Next is जैसे we tell the students about the moral values or teaching. जैसे मेरी क्लास में एक बच्चा है, आफ्टर दैट द पेरेंट्स इज सेइंग दैट कि मैम ही इज़ नॉट obedient. तो मैम इट्स ओके मैम, आई विल टेल द स्टूडेंट्स क्लियरली whenever they came. First brief the teacher. Whenever they came, I told कि go and first touch the feet of Arshdeep ma'am and the other teachers, those who are standing there. The daily boys go there first and touch the feet. And after that, when they came to me, they touch. I said, God bless you, student. और then parents said that, मैम ये घर पे आते मेरे feet touch. And it's a very good feeling of the parents at that time. नहीं दोबारा बोलो. The kids go at home and touch the feet of their parents. And the parents feel proud at that time. Our kids are learning something at the school. And the parents said us that कि ma'am, it's a very good thing which you are taught us student that कि ma'am इसने feet touch किए हमारे, आगे तो कभी ये wish भी नहीं करता था. And the next thing is I already tell the kids कि बेटा whenever you came to the class, kindly arrange your bags. तो पेरेंट्स का मैम ये सामान नहीं निकाला अपने बैग में से, ये रह गया मैम, वो रह गया. मैं कहा इट्स ओके मैम, टुमारो व्हेन द किड विल कम अगेन आई विल टोल द किड कि बच्चे बैग में से सामान निकालो, बिकॉज मैम वी आर हेयर कि बच्चे को कुछ सिखाना है. कि दीदियाँ क्लास में है बट दीदी नहीं करेगी ऑलवेज. अगर बच्चा अभी नहीं सीखेगा तो व्हेन दे विल लर्न. कि बच्चा आए खुद बताए, व्हेन मैम इज सेइंग बच्चे टेक आउट योर नोटबुक्स, टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम योर बैग, तो बच्चा खुद जल्दी से लेके आए भाग के, मैम दीज आर द नोटबुक्स, काइंडली कीप इट ऑन द टेबल. तो वो सीखा बच्चे ने. तो घर जाके मेरे को एक पेरेंट का कॉल आया, मैम नाउ माय किड इज़ अरेंजिंग ऑल द बुक्स एंड नोटबुक्स. इवन वो अपना बैग में प्रॉपर प्लेस पे रख रहा है, नहीं तो आगे आता है शूज़ उतारे, ऐसे उसने ज़ोर से फेंकने वो कह रहे हैं, बट नाउ उसने उतारने प्रॉपर शूज़ सॉक्स, नाउ कीप इट एट द प्रॉपर प्लेस. द सेकेंड थिंग आई टोल्ड द किड्स दैट कि नाउ दे लर्न कि हाउ वी आर अरेंजिंग आवर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस. थैंक यू. That's it. Yes, thank you so much.
she has added number of effective teaching points. मेरे को भी नहीं समझ आए थे इतने कि हम इतना डिस्कस कर चुके हैं. It is really effective. She wants to say something. I don't know why I'm feeling so. Please come. Any point left in anybody's mind can share. Good afternoon, all of you. मैडम ये यहाँ तक पहुँचा है. गुड आफ्टरनून. पीछे तक जाए जाए. Good afternoon, all of you. Okay, sir. All of you did not listen. Good afternoon, all of you. Now, okay, sir. हम किड्स को बहुत कुछ सिखाते हैं. एटिकेट्स स्टडी के साथ साथ एटिकेट्स भी मस्ट हैं. हमें पेरेंट्स खुद बताते हैं कि मैम हमारे बच्चे ने क्लास में क्या सीखा, हम वो घर में भी वही अप्लाई करते हैं. मैम ये घर में कपड़े चेंज ही खुद करता, हमें करना पड़ता है, ये वट एवर जो भी है. नाउ दीज डेज पेरेंट्स सेड मैम अभी खुद चेंज करता है कपड़े, अपने एटिकेट सीख लिए हैं इसने, बोलने का वे अच्छा हो गया इनका, जो आपने सिखा रहे हो वो दिखाई दे रहा है. सो बाकी इन्होंने बता ही दिया. मैं सेम थे. एक पॉइंट है जो आप मिस कर गए, वो ये है कि you have to communicate with the parents with the permission of your school, and I hope your school big bosses will also join in that 30 minutes communication. उससे क्या होगा कि आपका एक सिस्टम डेवलप होगा, आपकी एक कनेक्टिविटी विद द मदर होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप खाली बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, आप माँ को भी पढ़ा रहे हैं. जो बच्चे की मदर है ना उसको भी पढ़ा रहे हैं आप कि इसको कैसे पढ़ाना है. जब एक छोटा बच्चा आपके पास पढ़ने आता है, वो एक बच्चे की एडमिशन नहीं है, साथ में उसकी मम्मी की भी एडमिशन हो गई है. सो डियर टीचर्स, मेरा फर्स्ट सेशन डेडिकेटेड टू द मदर टीचर्स होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा लंबा गया. होप टॉलरेबल था. हमारे अंदर जो एक मदर है ना, या वुड बी मदर है या फादर है या वुड बी फादर है, उसको भी थोड़ा हमने टच कर दिया कि यार है ना चीज़, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सेल्फी, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फ़ोटो क्लिक करके डालना, उससे बहुत गज़ब का ट्रेंड बनेगा. आपको उन पेरेंट्स की दुआएं मिलेंगी. और शाम को दादाजी सैर करते हैं, वो बोलेगा होर जी भाई साहब सत श्री अकाल, मेरा पोता बड़े वधिया स्कूल च पढ़दा है, मैडम इन्नियां चंगियां ने, कहंदे जा दादे दे नाल फोटो खिचा, तो कहंदा पापा दादा जी पग वधिया बन्निओ अज, ओवे जो ना परना बन लिओ. कहंदा मैनूं हुण पग लैन जान पएगा. ठीक है, मैं हॉल बाज़ार तो लैके आवांगा, पगड़ी हाउस तो. ठीक है, फिर हर रोज़ हफ्ते दे विच एक फ़ोटो खिचाउंदा साडे नाल. दादी नूं कहंदा तूं ब्यूटी पार्लर जाके तैयार हो के आ. मैं दादा सीगा, मैं कहा रहन दे ओए बुढ़े लाइन ना मारना शुरू कर देन. सो लॉजिक इज व्हाट, देयर इज ए कनेक्टिविटी विद द parents, which is very important for a school. The word of mouth will, mama will say in kitty parties, my school, my children, Neha ma'am, all these teachers, I don't know everybody's name, are doing great under the dynamic guidance of Sandhya ma'am and Arsh ma'am. I speak Arsh ma'am now, okay? So they are dynamic people. Idea the mera hai. Just joking. It is our idea. I know the pulse. If young parents are happy, खानदानी स्कूल जिमें होता नहीं खानदानी शाही दवाखाना, तो खानदानी स्कूल बन जाएगा आपका और आपका नाम होगा. टीचर्स, I quote one actor, his name is Mr. Dharmender. वो कभी पैसे नहीं मांगते थे. फिल्म साइन कर दी, वो कहना पापे पैसे, कहना आ जाएंगे कोई ना, तो फिल्म बना, जब चल जाएगी बाद च दे दी. He is loved by everybody, yet at this age of 90s, touching 90s. Same is the case with us. हमें क्या मिलता है? टीचर को तो कोई पे ही नहीं कर सकता जी. कर सकता कोई पे? हमें कोई नहीं पे कर सकता. हमें अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ानी है? Connection with the pupil. Why I am doing workshops? I haven't come to Nakodar, but I heard a lot of name of Nakodar because of Ladi Shaji. So I am very lucky that I am on such a pious land. जाने दर्शन करा दियो. ठीक. So logic is what? कि
आपकी जगह बड़ी पवित्र है, उनकी ब्लेसिंग्स है। क्रिएट योरसेल्फ अमंग द बेस्ट टीचर्स। जिन टीचर्स का नाम ट्रेवल करता है ना, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, स्कूल भी उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। स्कूल भी बोलता है मैडम तू चिंता ना कर, किसी ने दसी ना तेरी तनख्वाह एनी कर देनी, चुप रह जाई ना, ठीक है। बाहर तू इन्ना होता है, इट इज देयर ए रियलिटी। जिसकी वैल्यू है उसको कौन खोना चाहेगा? एम आई राइट? क्या यो फेसेस मुझे खोना चाहेगा? बोलो, बता देना विजय पॉल सर को। सर डियर टीचर्स, हम लोग सुपरस्टार हैं। कार के पीछे लिखो प्राउड टू बी अ टीचर। चंडीगढ़ में मेरी कार के पीछे लिखा, चलान काटने लगा। मैं कहा काट दे, मैं जज साहब को बोलूँगा, मैं तो एजुकेशन दे रहा हूँ, वहाँ अलाउड नहीं है। मैं कहा मैं तो लिखूँगा। अरे यार तुम डॉक्टर लिखते हो, तुम एडवोकेट लिखते हो, यूपी में जाओ पहले, अब नहीं, पहले लिखा होता धर्मपाल सिंह हा हु वी। मैंने कहा यार ये क्या मतलब है हा हु वी? हारा हुआ विधायक। सो हम लोग टीचर हैं यार, वी आर क्रिएटिंग सोसाइटी। वो जो बच्चे आज के हैं, जो नर्सरी वाले बच्चे हैं, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो बोलेंगे। एक चीज और बताता हूं, जब नर्सरी का बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता, वो नई टीचर को एक्सेप्ट ही नहीं करता है ना, है ना। मैम उसका एक तरीका बताऊं, फरवरी में जब सेशन बदलना है, जिस क्लास में टीचर ने पढ़ाना है ना, उसको 15-15, 20-20 मिनट भेजना शुरू कर दो, वो बॉन्डिंग बनेगी। जब वो बड़ी क्लास में जाएगा, नेक्स्ट टीचर पे जाएगा, तो वो उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करेगा। सो बहुत कुछ है, मैं तो शाम तक बोल सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में रखेंगे बाकी। हाउ वाज द पॉइंट्स? इंप्लीमेंट होंगे तो बताओ। मेरा कोई पॉइंट नहीं है, इन्होंने खुद बोला है ऐसा। क्योंकि एक गल कमा, I gave one lecture in Bishop Cotton School to that the lady is from England, Mrs. Rebecca. Mrs. Sharma, I go, yes. You came here last month, yeah. You have delivered a 3-hour lectures which was extended to 4 hours. I go, yeah. But I did not see under root -1 effect on them. मैं कहा पहला मैं आंसर इन हिंदी। मैं कहा हम हैं टीचर इंडियन, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे 33 करोड़ देवी देवता आके सन्नू समझा जन, ਅਸੀਂ करना तो वही है जो ਅਸੀਂ सोचा हुआ है। ठीक है मैम, तालियां फॉर योर सेल्फ। प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल, चेयरमैन, नौकरी छड़ देंगे, पर करना था वही है जो नेहा मैडम ने सोचा है। नेवर कॉम्प्रोमाइज। यस, आप एक काम कर सकते हो, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ को वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, ठीक है ना। तो आप लोगों में जो आपके अंदर का टैलेंट है उसको जगाओ, उसको जगाओ। जिस दिन वो जाग गया, मैं कहना सारे लोग फैन हो जाएंगे। कोई बोलेगा तेन मैं ₹1,00,000 का पैकेज दे रहे हैं, 12 लाख का, कुड़िए साढ़े को लाके पढ़ा। फैन फॉलोइंग होगी ना आपकी। वाई द सुपरस्टार्स आर गेटिंग सो मच मनी, चाहे पिक्चर बेकार बनाते हों, बिकॉज दे हैव गॉट ए फैन फॉलोइंग। लोग पहले से टिकट ले लेते हैं। तो आपको तो सीधा डायरेक्ट लोगों को मिलने का चांस मिलता है, बच्चों को मिलने का चांस मिलता है। एडिशनल मैंने क्या किया, संडे के संडे 30 मिनट्स विद द मदर टीचर्स, जो छोटे बच्चे हैं। सो एनी मोर क्वेश्चन? तो आप लोगों को इतनी देर खड़ा करके रखा मैंने, मैं खुद भी खड़ा हूँ, राइट। और असली टीचर वही होता है जो बैठे ना। मैं किसी के घर जाता हूँ फिर खड़ा हो जाता हूँ सोफे पे, क्यों? ट्रैफिक पुलिस वाले और टीचर बैठ ही नहीं पाते, वो सारा दिन उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं। और कई बार तो हम लोग रात को सोते हुए भी पढ़ा रहे होते हैं। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, घर वाले कहते पागल आदमी है। तो सो इट हैपन्स, एक पागलपन होना बड़ा ज़रूरी है। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम, मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं विवेक मल्होत्रा जी, वो बोलते हैं अब हम एक ब्रेक लेंगे और गाड़ी 15-20 मिनट रुकेगी, उसके बाद टू बी कॉन्टिन्यूड।
और इसके बाद हम निकलेंगे सब्जेक्ट वाइज। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद साइंस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर बाकी जनरल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन होगा जो गूगल से नहीं होगा वो मुझसे डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपके मन में हो वो आप नोट कर लेना, फिर हम शेयर करेंगे। राइट, दिस इज योर सेशन। तभी मैं कंटेंट नहीं तैयार करके आता, कंटेंट ऑटोमेटिकली बनता है। थैंक यू।